Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise number 8.3. Okay? So our question number 1 is, tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. Okay? अगर profit होता है तो हमें profit percent भी बताना है, अगर loss होता है तो हमें loss percent भी बताना है. Okay? So our A part is gardening shares bought for rupees 250 and sold for rupees 325. Okay? Gardening shares means gardening का जो कटिंग का आता है, गार्डन में जो कटिंग का आता है वो कितने रुपए में खरीदा गया? bought for rupees 250 and sold for rupees 325. Okay? So सीधी सी बात है, this is our CP कॉस्ट प्राइस, जो हमारी बाइंग प्राइस होती है दैट इज 250 एंड कितने में सोल्ड किया गया? 325 मींस आवर एसपी इज 325. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ gardening shares is equal to 250 rupees. And selling price of gardening shares is equal to 325 rupees. Clear? तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? Here obvious SP is greater than CP. जो हमारा सेलिंग प्राइस है which is 325 is greater than 250. Therefore here is profit. तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इन रुपीज में निकालने का, दैट इज एसपी माइनस CP. Profit is equal to SP minus CP. What is our SP? That is 325 rupees and minus 250, that is 75. 325 minus 250, that is 75 rupees. Okay? ये तो हमारा प्रॉफिट आया किसमें? रुपीज में. लेकिन हमें उसे किसमें फाइंड करना है? परसेंट्स में. ओके? सो प्रॉफिट परसेंट का हमें फॉर्मूला पता है. ओके? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय सीपी. हमने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के फॉर्मूला देखे. सो व्हाट इज आवर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 75 रुपीज. Multiply 100 and divide by CP. What is our CP? Cost price is 250 rupees. So this is 250. 10 से 10 cancel. Okay? 25 is 25 and 25 3 is 75. Then remaining is 3 multiply 10. 3 multiply 10 is 30%. So our profit percent is 30%. Clear? Now हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है, दैट इज अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज 12,000 एंड सोल्ड एट रुपीज 13,500. ओके? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितनी है? रुपीज 12,000. ओके? एंड सेलिंग प्राइस ऑफ refrigerator
is equal to rupees 13,500. Okay, so here obvious selling price is more than cost price, so here SP is greater than CP, and if SP is greater than CP, there is a profit. So therefore here is profit, and प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एसपी माइनस सीपी. व्हाट इज आवर एसपी? 13,500 माइनस सीपी इज इक्वल टू 12,000. सो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास? 1,500 रुपीज. ये हमारा प्रॉफिट किसमें आया? दिस इज आवर प्रॉफिट in rupees, and we have to find in also profit percent. Okay, so profit percent का formula क्या है? Profit percent is equal to profit multiply 100 and divide by CP. Clear? So profit in rupees is 1,500. Multiply 100 and divide by CP. What is CP? 12,000. Okay, कैंसिल कर देते हैं. 3 zeros से 1, 2 and 3 zeros. Okay, then 3 से कैंसिल कर देते हैं. 3 5s are 15 and 0, and 3 4s are 12. 2 से कैंसिल कर देते हैं. 2 25 and 2s are, so remaining क्या है हमारे पास? 25/2, and 25/2 is 12.5%. So our profit percent is equal to 12.5%. Okay, so this is our part B. और आपको होमवर्क में करना है पार्ट सी एंड डी. क्लियर? नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज convert each part of the ratio to percentage. We have to convert the given ratio into percentage. Okay, so our A part is 3:1. Okay, so first हम क्या फाइंड करेंगे? इसके टोटल पार्ट्स. Total parts equal to 3 plus 1, which is equal to 4. Okay, therefore हम फाइंड करेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट is equal to 3/4 is to 1/4. Okay, then फ्रैक्शन को हमें परसेंट में चेंज करना आता है by multiplying 100%. Okay, so percentage of fractional parts is equal to 3/4 multiply 100 is to 1/4 multiply 100. ये हम फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंट में. ओके, सो 4 1 is 4 and 4 25 and 25 multiply 3 is 75%. Then is to इसको सॉल्व करेंगे. 1/4 multiply 100, 4 1s are 4 and 25 4s are 100. So 25 multiply 1 is 25%. Okay, so इसका क्या आया? 75% is to 25%. Clear? Similarly हम पार्ट बी देखते हैं. दैट इज 2:3:5. इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स इक्वल टू 2 plus 3 plus 5. 5 plus 3 is 8 and 8 plus 2 is 10. देन आफ्टर हम क्या फाइंड करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट्स. फ्रैक्शनल parts is equal to
2/10 is to 3/10 is to 5/10. क्लियर? देन हम इसका फाइंड करेंगे परसेंटेज. देन परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 100% से. इज टू 3/10 मल्टीप्लाई 100% is to 5/10 multiply with 100%. So you will get over here is 0 से 0 cancel and 2 multiply 10 is 20% is to, again 0 से 10 cancel and 10 multiply 3 is 30% is to, again 10 से 10 cancel and 5 multiply 10 that is 50% and this is your answer. Okay, so हमने given ratios को किसमें चेंज कर दिया? परसेंट्स में. Is it clear to you? Fine. Now our question number 3 is the population of a city decreased from 25,000 to 24,500. कम हो गई, ठीक है? कितने? 25,000 से 24,500. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पढ़ा है. क्या था उसका फॉर्मूला? इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का, विच इज अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100. यहां पे अमाउंट ऑफ चेंज मींस आपकी पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई वो आपको फाइंड करना है. ओके, सो आवर सॉल्यूशन इज फर्स्ट टर्म अमाउंट ऑफ चेंज, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज यहां पे अमाउंट ऑफ चेंज का काम कर रही है. सो पॉपुलेशन डिक्रीज इज इक्वल टू, कितनी डिक्रीज हुई? 25,000 माइनस 24,500 विच इज इक्वल टू 500. पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई आपकी? 500. ये तो नंबर्स में आ गया, लेकिन हमें किस में फाइंड करना है इसे? परसेंट में. सो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन. ओरिजिनल पॉपुलेशन सेम फॉर्मूला है हमारा. अमाउंट ऑफ चेंज की जगह पे यहाँ पे क्या काम कर रहा है? पॉपुलेशन डिक्रीज एंड ओरिजिनल अमाउंट मींस आर ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. देन पॉपुलेशन डिक्रीज इज इक्वल टू 500 एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल अमाउंट हमारी क्या है? 25,000. ओके, 25,000 से कम हुई है तो ओरिजिनल कितनी रही आपकी? 25,000 एंड मल्टीप्लाई 100. सो 3 0 से 1 2 एंड 3 zeros कैंसिल. ओके, 25 1s are 25 and 25 2s are is 50. So you will get 2%. Okay, so population decreased, thus population decreased is 2%. Clear? Now our question number 4 is Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to rupees 3,70,000. प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. That is 3,70,000. What was the percentage of price increase? Okay, so हमें वो किसमें निकालना है कि कितना परसेंट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो. क्लियर? सो हमने पढ़ा है फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का, दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100. सो अमाउंट ऑफ चेंज कितना हुआ? अमाउंट
of change is equal to 3,70,000 minus 3,50,000, which is equal to 20,000 rupees. इतना अमाउंट चेंज हुआ, ओके, यानी कि कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, दैट इज 20,000 रुपीज इंक्रीज हुआ, ओके. सो हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है. इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है उसका, अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट multiplied by 100. What is our amount of change? Is 20,000. Okay, and original amount is 3,50,000. And multiply 100. 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 zeros and 4 zeros कैंसल. इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 25 is 100 and 5 7s are 35. So what you will get here is 20 multiplied 2 is 40 and divided by 7. इसे हम मिक्स में लिख देते हैं, ओके, मिक्स फ्रैक्शन में, दैट इज कितना परसेंट हुआ, ओके. 7 40, 7 5 35, so we'll get 5. अब 40 by 7 को हम मिक्स में किस तरह लिखते हैं, जो अपॉन 7 है वो आपका 7 रहेगा, जो रिमाइंडर में है दैट इज ऊपर, एंड क्वोशंट बन जाता है आपका होल पार्ट. सो दिस इज 5 by 7%. ओके, सो इतना परसेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ओके, कार की प्राइस में. क्लियर?